خطے کا نیا تجارتی اور معاشی ہب پاکستان معدنی وسائل میں سرمایہ کاری پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم اسلام آباد میں جاری وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی خصوصی شرکت اعلیٰ سطح امریکی وفد بھی شریک ریکوڈک سمیت معدنی منصوبوں میں سرمایہ کاری سیکیورٹی اور حکومتی پالیسیوں پر سیشنز فورم معدنی وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا اہم موقع پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک سونے اور تانبے کے وسیع ذخائر موجود ہیں پائیدار معاشی استحکام کے لیے معدنی وسائل سے بھرپور استفادہ کرنا ہوگا منرلز انویسٹمنٹ فورم سے معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوگی نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا فورم سے خطاب منرلز انویسٹمنٹ فورم میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی شرکت ہمارے لیے خوش آئند ہے بلوچستان معدنی وسائل سے مالا مال صوبہ ہے پاکستان کے معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں حکومت بیرونی سرمایہ کاروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے وزیر تجارت جام کمال پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم غیر ملکی سرمایہ کاروں اور ماہرین کی پاکستان آمد سعودی گولڈ ریفائنری کے ڈیپٹی چیئرمین بیرک گولڈ کے سی ای او ایشیائی ترقیاتی بینک کی ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل چین کے یان جیولوجیکل سروے سینٹر کے وفد کی بھی آمد امریکہ یورپ ایشیا روس ترکیہ سمیت متعدد ممالک کے حکام فورم میں شریک حکومت معدنی وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے پرعزم ہے پاکستان میں سرمایہ کاروں کے لیے قوانین کو آسان بنایا جا رہا ہے فورم میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی شرکت پاکستان کے معدنی شعبے پر اعتماد کا مظہر ہے حکومتی کاوشوں سے معاشی استحکام ممکن ہوا زر مبادلہ میں اضافہ اور مہنگائی میں کمی ہوئی ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج دنیا کی بہترین سٹاک مارکیٹوں میں شامل ہوئی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا خطاب معدنی وسائل کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں مستقبل میں ملکوں کی ترقی کا انحصار معدنی وسائل پر ہوگا پاکستان معدنی وسائل کے حساب سے خطے میں منفرد مقام رکھتا ہے ریکوڈک منصوبہ پاکستان کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا اس منصوبے سے بلوچستان میں بھی ترقی ہوگی مقامی آبادی کے لیے ترقیاتی منصوبے شروع کر رہے ہیں بیرک گولڈ کے سی ای او مارک برسٹو کا ریکوڈک فورم سے خطاب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ مارکو روبیو کا افغانستان میں امریکی فوجی ہتھیاروں کے مسئلے کو حل کرنے پر اتفاق مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے مل کر کام کرنے کا فیصلہ علاقائی سلامتی اور اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال شراکت داری مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ امریکہ کا تجارت اور سرمایہ کاری کے مختلف شعبوں بالخصوص اہم معدنیات میں تعاون کی خواہش کا اظہار وزیر خارجہ روبیو کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب سے اقتصادی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر اسد مجید خان کی ملاقات علاقائی اقتصادی تعاون بڑھانے کے حوالے سے بات چیت تنظیم کے 10 رکن ممالک کے درمیان تجارت معیشت اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے مختلف اقدامات پر تبادلہ خیال تجارتی راہداریوں اور ابھرتی ہوئی منڈیوں کے تناظر میں علاقائی تجارت اور روابط کی اہمیت پر زور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے سٹیزن ولیج انٹرنیشنل کے صدر کی لاہور میں ملاقات یتیم اور بے سہارا بچوں کے تحفظ تعلیم اور ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے اشتراک کار بڑھانے پر تبادلہ خیال ہر بچہ ریاست کی ذمہ داری ہے حکومت پنجاب اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے چائلڈ کیئر ریفارمز کا آغاز کیا جا رہا ہے جس کے لیے ایس او ایس انٹرنیشنل کا شراکتی کردار اہم ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مسعود احمد خان کی زیر صدارت نیشنل یوتھ اینڈ ایڈولسنٹ پالیسی پر اجلاس وفاقی سطح پر ایک جامع نیشنل یوتھ پالیسی وقت کی اہم ضرورت ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر پالیسی سازی کی جا رہی ہے نیشنل یوتھ پالیسی کے حوالے سے مشاورتی عمل کا آغاز ہو چکا ہے نیشنل اسمبلی میں ینگ پارلیمنٹیرینز بھی پالیسی سازی کا حصہ ہوں گے رانا مسعود احمد خان حکومت کے زبردست اقدامات عوام اور تاجروں کا بھرپور اعتماد اقتصادی سرگرمیوں میں غیر معمولی تیزی
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1200 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,16,000 से तजावुज कर गया। टेलाफील्ड फायरिंग रेंज जेहलुम में पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स का मुश्तरका फायर पार का अमली मुजाहरा। स्पेशल सर्विस ग्रुप, आर्मी एविएशन और एयर डिफेंस की शानदार कारकर्दगी। आला अस्करी हुकाम, पीएमए कैडेट्स और तलबा ने जंगी हिकमत अमली, दिफाई सलाहियतों, फायर पार और कम्युनिकेशन नेटवर्क की हम आहंगी का अमली नमूना देखा। पीएमए कैडेट्स ने खारिया में जदीद हथियारों और आलात का मुआयना भी किया। मणिपुर एक बार फिर तबाही के दहाने पर। वक्फ मुतनाज़िया बिल पर पूरा भारत एहतजाज की लपेट में। बीजेपी रहनुमाओं के घर नजर आतिश। मुसलमानों के अक्सरियती इलाके थोवाल में बीजेपी के खिलाफ हजारों अफराद का शदीद एहतजाजी मुजाहिरा। हुकूमती पॉलिसियां मुस्लिम बरादरी में इश्तियाल का बाइस बन रही हैं। भारतीय मीडिया। गजा में इजरायली बर्बरियत का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में इजरायली बमबारी से मजीद 19 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। बैतुल्लाहिया में एक घर पर हमले में 6 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा के नसीर अस्पताल के करीब सहाफियों के खैमों पर बमबारी से जांबहक फलस्तीनी सहाफियों की तादाद 3 हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इस्राएली वजीर आजम की व्हाइट हाउस में मुलाकात। गजा में जंगबंदी मुआहिदे की कोशिशों पर बातचीत। 6 आलमी इदारों के सरबराहों की जानिब से गजा में फौरी नया जंगबंदी मुआहिदे का मुतालबा। दोनों लीडर्स की गजा से फलस्तीनियों को बेदखल करने के मंसूबे पर भी गुफ्तगू। फ्रांस, मिस्र और उर्दन ने फलस्तीनियों को गजा से बेदखल करने का अमरीका इसराइल मंसूबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की व्हाइट हाउस में मुलाकात। गजा में जंग बंदी मुआहिदे की कोशिशों पर बातचीत। 6 आलमी इदारों के सरबराहों की जानिब से गजा में फौरी नया जंग बंदी मुआहिदे का मुतालबा। दोनों लीडर्स की गजा से फलस्तीनियों को बेदखल करने के मंसूबे पर भी गुफ्तगू। कनाडा के 45वें आम इंतखाबात के लिए मुहिम का बाकायदा आगाज। मुल्क के तमाम 10 सूबों और 3 विफाकी इलाकों में 28 अप्रैल को वोटिंग का अमल मुकम्मल होगा। कैनेडियन क्रिकेट का बड़ा मेला पाकिस्तान में सजने को तैयार। पीएसएल के 10वें एडिशन के आगाज में सिर्फ 3 रोज बाकी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद की तैयारियां जारी। इफ्तिताही और लाहौर कलंदर्स 11 अप्रैल को रावलपिंडी में होंगे मद्दे मुकाबिल। इवेंट पीटीवी स्पोर्ट्स HD। कराची में पहली वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल्स आज खेले जा रहे हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के नूर जमान फ्रांस के मेलवेल के मद्दे मुकाबिल। दूसरे क्वार्टर फाइनल में हमजा खान का मुकाबला मलेशिया वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर का चौथा स्टॉप एल सिल्वाडोर में सर्फिंग मुकाबले। ऑस्ट्रेलिया की इजाबेला और हवाई की बेटेलो स्कोर जॉनसन क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई। प्री क्वार्टर फाइनल में इजाबेला ने अमेरिका की कैरोलाइन मार्क्स को हराया। स्कोर जॉनसन ने 2 मरतबा की आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टाइलर वॉइट्स को शिकस्त दे दी। और फ्रांस में दिमागी इम्तिहान के खेल शतरंज के फ्री स्टाइल मुकाबले। आलमी नंबर 1 नॉर्वे के मैगिन्स कार्लसन का भारत के विदेत गुजराती के खिलाफ मैच से आगाज। 14 अप्रैल तक जारी इवेंट में दुनिया के 12 बेहतरीन ग्रैंड मास्टर्स मुकाबला करेंगे। खिलाड़ियों में $7.5 लाख अमरीकी डॉलर्स की इनामी रकम तकसीम की जाएगी। चैंपियन $2 लाख का हकदार करार पाएगा।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। बुलेटिन का आगाज करेंगे खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल की मुआवनत से 2 रोजा पाकिस्तान मिनरल फोरम इस्लामाबाद में जो इजलास जारी है उससे आज इफ्तिताही रोज 3 अहम सेशंस पर मुश्तमिल होगा, जबकि कल रेकोडिक पर तफसीली पैनल डिस्कशंस होंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत हुकूमत के आला ओहदेदारान भी फोरम में शरीक है। फोरम के पहले रोज आज़रबाईजान के वज़ीर मईशत, अमरीकी एहलकार एरिक माइस और सऊदी नायब वज़ीर सनत वजारती सेशंस में शरीक हैं। बैरिक गोल्ड के CEO मार्क ब्रिस्टो रेकोडिक पाकिस्तान में कानकनी के मुस्तकबिल पर अहम खिताब करेंगे, जबकि कल रेकोडिक सेशन में आलमी माहिरीन और मंसूबे के रहनुमा इसकी पेशरफ्त और इम्कानात पर रोशनी डालेंगे। नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड के मोहम्मद अली टिब्बा और FWO के DG ब्रीफिंग सेशन से खिताब, जबकि सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे के CEO और आलमी माहिरीन मादनी नक्शा साजी और उभरती मईशतों के लिए जियोलॉजिकल सर्वे की अहमियत पर गुफ्तगू करेंगे। कौमी मादनी पॉलिसी पर माहिरीन सरमाकारी कानून और इस्लाहात पर पैनल गुफ्तगू करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार मौशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। मादनी शोबे में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए इस्लामाबाद में जारी 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में नायब वज़ीर आज़म ने उम्मीद ज़ाहिर की कि फोरम से मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की राह हमवार होगी। उन्होंने कहा कि तमाम मुआशी आशारिये मुस्बत हैं, आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। फोरम से खिताब में वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना था कि बलूचिस्तान मादनी वसाइल से माला माल सूबा है। पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। मादनी वसाइल को बुरुएकार लाने के लिए सरमायाकारी दरकार है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि फोरम के इनेकाद का मकसद पाकिस्तान के मादनी शोबे के मौक़े उजागर करना है। फोरम में गैर मुल्की सरमायाकारों की शिरकत पाकिस्तान के मादनी शोबे पर एतमाद का मज़हर है। उन्होंने कहा कि हुकूमती काविशों से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ, ज़र मुबादला में इजाफा और महंगाई में कमी हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केटों में शामिल हुई। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत मादनी वसाइल को बुरुएकार लाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए क़वानीन को आसान बनाया जा रहा है। सदर और CEO बैरिक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान मादनी वसाइल के बायस मुनफरिद हैसियत रखता है। मादनियात का हुसूल सनत के लिए बहुत ज़रूरी है। रेकोडिक पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा और बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का बायस बनेगा। मुकामी आबादी के लिए भी अहम मनसूबों का आगाज करेंगे। मार्क ब्रिस्टो ने कहा कि इलाके में छोटे कारोबार के फ़रोग में भी भरपूर मदद करेंगे। नाज़रीन, बलूचिस्तान ज़ेर ज़मीन कुदरती ज़खायर के ख़जानों से माला माल सूबा है, जहाँ चीन के इश्तराक से सैंडिक के मकाम पर गुज़िश्ता 23 बरस से तांबे की कानकनी जारी है। सैंडिक में चीन की कंपनी ने खाम मवाद के अखराज से लेकर 99.87% तांबे के हुसूल तक के इंतजाम कर रखे हैं। चीनी माहिरीन के मुताबिक सैंडिक से 23 बरस में 3,40,000 टन तांबा निकाला जा चुका है, जबकि मजीद 3 लाख टन के ज़खायर मौजूद हैं जो अगले 15 बरस में निकाले जाएंगे। सैंडिक में कंपनी ने एक हाई स्कूल भी कायम किया है, जहाँ तलबा को मुफ्त मयारी तालीम फ्राहम की जाती है। चीनी कंपनी ने 6 नवाही गाँव को मुफ्त बिजली और पानी फ्राहम कर रखा है। कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत कंपनी के इलाके के मकीनों को घर के साथ सालाना राशन भी मुफ्त फ्राहम कर रही है। और मुल्क के मजमूई दरियाफ्त शुदा और माशी अहमियत के मादनी वसाइल का निस्फ से भी ज़ायद हिस्सा खजाना बलूचिस्तान में है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वकार अहमद। माइंस एंड मिनरल्स पाकिस्तान के 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर मादनी वसाइल तकरीबन 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैले हुए हैं। यानी मुल्क का 68% रकबा मादनी वसाइल से मालामाल है और इस 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का 55% हिस्सा बलूचिस्तान का है। यानी मुल्क के मजमूई दरियाफ्त शुदा और माशी अहमियत के मादनी वसाइल का निस्फ से भी जायद खजाना बलूचिस्तान है। पाकिस्तान में अब तक दरियाफ्त मेटालिक या नॉन मेटालिक 92 मादनी ज़खायर में कमर्शियल अहमियत की 52 मादनियात सुई गैस, कॉपर, गोल्ड, क्रोमाइट, लेड, जिंक, बाराइट और मार्बल समेत 50 मादनियात बलूचिस्तान में पाई जाती हैं। जितनी भी मिनरल्स पाकिस्तान में मौजूद है उसका 50% जो मिनरल्स हैं वो बलूचिस्तान में है और जो 6 लाख
मरबा किलोमीटर पर जो मिनरल मौजूद हैं उस पर भी मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा जो है ना वो बलूचिस्तान में ही है। तो वो सारी हाइड थी। तो इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे कि हमारे पास इतना बड़ा डिपॉजिट मिनरल्स का मौजूद है, हमारे पास माइनिंग के शोबे में बड़ी काम करने की ज़रूरत है। और अगर आप दुनिया की कंपनीज़ यहाँ पे आती हैं, काम करती हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी जो इकॉनमी की वेल्थ है वो बेहतर हो जाएगी। और फिर हम वो जो ज़ेर ज़मीन हमारा मादनियात का ख़जाना है उससे हम इस्तेफादा कर सकेंगे। चागी बलूचिस्तान में अंदाजन $100 बिलियन मालियत के रैकदिक कॉपर गोल्ड माइंस रिजर्वायर दुनिया के 5वें बड़े ज़खायर हैं। 5.9 बिलियन टन तांबे, 41.5 मिलियन आउंस गोल्ड और 22 मिलियन आउंस चांदी के साथ रैकोदिक का मिनरल जोन ही 100 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। प्लानिंग के तहत रैकोदिक प्रोजेक्ट से 2028 से पैदावार भी शुरू हो जाएगी। कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसमें दुनिया को जब एक प्रेजेंटेशन दी जाएगी कि हमारे पास किस किस एरियाज़ में कितना मिनरल मौजूद है, और यहाँ पे जब वो कंपनियाँ आएंगी और फिर यहाँ पे जब माइनिंग का शोबा जो है वो एक दफ़ा फिर से तरक्की करेगा, तो मैं समझता हूँ ये बलूचिस्तान में और पाकिस्तान दोनों की किस्मत को बदल देगा। सेंधक चागी में चीन के ताउन से MRTCL गुज़िश्ता 23 साल से कॉपर एक्सकेवेशन कर रहा है। अब तक अंदाजन 3,40,000 टन तांबा निकाला जा चुका है और अभी भी 3 लाख टन कॉपर के ज़खायर सेंधक में मौजूद हैं, जिन्हें आइंदा 15 सालों में निकाला जाएगा। 1952 में दरियाफ्त होने वाले 9 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के डेरा बुगटी के सुई गैस फील्ड के ज़खायर 60 साल से जायद इस्तेमाल होने के बाद आज भी सालाना 400 से 500 अरब क्यूबिक फीट गैस फराहम कर रहे हैं। बलूचिस्तान के दरियाफ्त शुदा मादनी वसाइल के साथ 700 किलोमीटर कोस्टल बेल्ट और समंदरी हुदूद में भी कुदरती वसाइल की मौजूदगी का वसी इम्कान है। वकार अहमद, PTV न्यूज़, क्वेटा। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन अपने सीने में सोने से भी कीमती खजाने छुपाई बैठी है। अगरचे मादनियात के शोबे में गुज़िश्ता कई साल से सरमायाकारी हो रही है, लेकिन इस छुपे खजाने को दरियाफ्त करने और इससे इस्तेफादा करने के लिए मजीद इकदाम दरकार हैं। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं पेशावर से अकदर खान की ये रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का वो सूबा है जहाँ कुदरत ने अपने खजाने ज़मीन की गहराइयों में छुपा रखे हैं। यहाँ की ज़मीन सिर्फ फलों और सब्जियों के लिए ही जरखेज़ नहीं बल्कि मदनियात से भी मालामाल है। सवात से लेकर वज़ीरिस्तान तक खैबर पख्तूनख्वा में ज़मरूद, क्रोमाइट, तांबे, जिप्सम, चूना, नमक और दीगर मदनियात के ज़खायर मौजूद हैं। मौजूदा वक्त में खैबर पख्तूनख्वा में 50 से ज़ायद मुख्तलिफ मदनियात की कानकनी की जा रही है और हज़ारों अफराद इस शोबे से वाबस्ता है। ये शोबा सरमायाकारों के लिए बेपनाह मौक़े फराहम करता है। मदनियात की तलाश से लेकर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और बरामदात तक हर मरहला मुनाफा बख्श कारोबार का दरवाज़ा खुलता है। कीमती पत्थर जो है ना बहुत सारा है, 5000 मिनरल से ज़्यादा है। एक ही पत्थर में कम से कम 100-200 किस्म पत्थर है कि उसमें रोटाइल क्वार्ट्स है, सादा क्वार्ट्स है, पार्डन क्वार्ट्स है और डायमंड क्वार्ट्स है। खैबर पख्तूनख्वा में मोस्टली स्वात में ज़मरूद पाया जाता है और स्कर्दू में, गिलगित बल्चिस्तान में यहाँ पे अकोमरीन, कुंजाइट और मार्गनाइट हो गए, ब्लैक टूरमलिन हो गई, ये सारा मदनियात पाए जाते हैं। इस शोबे को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करके इसकी अफादियत को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। हुकूमती माविनत और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की दस्तियाबी की सूरत में खैबर पख्तूनख्वा का मदनियाती शुबा पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी बन सकता है। जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे जवाहरात जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो प्रीशियस में भी आता है, वो स्वात में पाया जाता है ज़मरूद। तो ये सारे इलाके जिमस्टोन से, जवाहरात से, मिनरल से भरे पड़े। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो बाहर ममालिक से भी लोग आएंगे, यहाँ पे विज़िट करेंगे और यहाँ पे जिस तरह काम हो रहा है तो हमारा भी मार्केट उससे अच्छा होगा। अगर जो है ना वो कोई सपोर्ट जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना वो निकल जाते, तकरीबन हमारे सोच के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में जो सबसे, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि एशिया में सबसे बड़ा मंडी जो ना ये नमक मंडी है जी। पाकिस्तान में होने वाला मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम खैबर पख्तूनख्वा के मदनियात के शूबे के लिए बेहद मुफीद साबित हो सकता है। ये फोरम कौमी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को एक प्लेटफार्म फराहम कर सकता है जहाँ वो खैबर पख्तूनख्वा के मदनी वसाइल से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। आज की बेहतरीन हिकमत अमली कल के रोशन पाकिस्तान की जमानत है। खैबर पख्तूनख्वा में मदनियात का शुबा मुंतजर है, सिर्फ एक दुरुस्त सिमत और दुरुस्त फैसला और दुरुस्त सरमायाकारी की देर है। अकदर खान, PTV न्यूज़,
न्यूज़ पेशावर। गिलगित बल्तिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल खित्ता है। यहाँ पाई जाने वाली मादनियात का दुरुस्त इस्तेमाल करके मईशत में बेहतरी लाई जा सकती है। देखते हैं गिलगित से शाहीन सफदर की रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान के वसी पहाड़ी सिलसिलों में मुख्तलिफ इकसाम के मादनियात का वसी जखीरा मौजूद है। इस खित्ते में मादनियात की कई इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें कीमती धातें, जवाहिरात और सिन्नती मादनियात शामिल है। यहाँ सोने, चांदी और तांबा जैसी कीमती धातें भी बेकसरत पाई जाती हैं। बलूचिस्तान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक खरबों डॉलर के ज़खायर पड़े हुए हैं, बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। गिलगित बल्तिस्तान में इससे पहले भी बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन मौजूदा हुकूमत के दौर में जो माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट को जो लीजेस के हवाले से ऑनलाइन कर दिया गया है, उससे न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बैन अवी सतह पे भी इसकी पज़ीराई हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में पाई जाने वाली मादनियात की बैन अवी मार्केट में बड़ी मांग है। मिनरल सेक्टर की डिजिटलाइजेशन और ई गवर्नेंस के लिए कुछ नए इनिशिएटिव्स ले लिए हैं, जो कि इंकरेजिंग है। हमने पोर्टल लॉन्च किया है और उस लॉन्च के बाद हमें इंकरेजिंगली तकरीबन 1200 से ज़्यादा एप्लीकेशंस डिफरेंट मिनरल टाइटल्स के लिए वसूल हो गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान यकीनन मादनियात के हवाले से और ये कीमती पत्थरों के हवाले से बहुत रिच है। गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान हमारे लेबोरेटरी सेंटर्स हैं गिलगित में और सिकरदो में, उसको भी अपग्रेड करने जा रहे हैं। उनकी अपग्रेडेशन से यहाँ के जो जेम स्टोन के माइनर्स हैं उनके लिए बहुत खातिर ख्वाब उनको मदद मिलेगी। गिलगित बल्तिस्तान में मादनियात को निकालने और प्रोसेसिंग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की जरूरत है। मादनियात का मौसर इस्तेमाल न सिर्फ इस खित्ते की तरक्की में मदद देगा, बल्कि इससे पूरे मुल्क की मईशत मुस्तहकम होगी। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत इलाके में पाई जाने वाली मादनियात को इंसानी तरक्की के लिए बरोकार लाने के लिए इकदामात उठा रही है। शाहीन सफदर, PTV न्यूज़, गिलगित। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सलामती और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल किया। टेलीफोनिक राब्ते में नायब वज़ीर आज़म ने तजारत, सरमायाकारी और इंसदाद दहशतगर्दी जैसे शोबों में ताउन को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के साथ तजारत और सरमायाकारी के मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस अहम मादनियात में ताउन की ख्वाहिश का इज़हार किया और कहा कि मईशत और तजारत में ताउन दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तक़बिल के ताल्लुकात की पहचान होगा। इसहाक डार ने 2013 से 18 के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग में पाकिस्तान की कोशिशों पर रोशनी डाली। उन्होंने पाकिस्तान के माशी और इंसानी नुकसान को भी उजागर किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन को मज़ीद बढ़ाने की अमरीकी ख्वाहिश का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी फ़ौजी हथियारों के मसले को हल करने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया। इसहाक डार और मार्को रूबियो ने करीबी रवाबित और मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने दोस्त ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को फ़रोग़ देने के पाकिस्तान के अज़्म का अदा किया है। दोस्त ममालिक के साथ सरमायाकारी में ताउन से मुताल्लिक बैनुल वज़ारती इजलास की सदारत करते हुए इसहाक डार ने स्ट्रेटेजिक मंसूबों को हतमी शक्ल देने की ज़रूरत पर जोर दिया। इजलास में SIFC, वज़ारत उमूर ख़ारजा, पेट्रोलियम, IT, NHA, फाइनेंस, कम्युनिकेशंस और दीगर अहम महकमों के सीनियर हुकाम ने शिरकत की और तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, तिजारत और टेक्नोलॉजी के शोबों से मुताल्लिक तजावीज़ का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर असद मजीद खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में इलाकाई इक़्तिसादी ताउन, तजारत, मईशत और सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में तजारती राहदारियों और उभरती हुई मंडियों के तनासुर में इलाकाई तजारत और रवाबित की अहमियत पर भी जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने रुकन ममालिक के मबैन ताउन, इलाकाई तजारत और रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इलाकाई तजारत और रवाबित के एजेंडे को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमती ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर डेरेजे वर्दोफा ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में यतीम और बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम,
और ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए इश्तराक कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने SOS विलेज की समाजी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि यतीम और बेसहारा बच्चों को SOS विलेज में महफूज छत और मयारी तालीम फराहम किए जाना काबिल तहसीन इकदाम है। मरियम नवाज ने कहा कि चाइल्ड केयर रिफॉर्म्स का आगाज किया जा रहा है, जिसके लिए SOS इंटरनेशनल का शराकती किरदार अहम होगा। SOS चिल्ड्रन विलेज के सदर ने कहा कि मरियम नवाज की चाइल्ड केयर पॉलिसीज हर तबके से ताल्लुक रखने वाले बच्चों के लिए उम्मीद का पैगाम है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 1,16,690 पर ट्रेड कर रहा है। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास इस वक्त कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ज़मीर, ये बताएगा कि गुज़श्ता रोज़ के बाद मार्केट ने किस तरह से रिकवर किया है, आज क्या सूरत हाल है? जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज सुबह से तेज़ी देखने में आ रही है और दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में अब तक 1760 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है, जिसके बाद मार्केट 1,16,690 पर भी पहुंची है। मार्केट में तेजी की असल वजह वो रिकवरी है जो हमने गुज़श्ता रोज़ देखा कि मार्केट में काफ़ी डिप रहा। मार्केट में डिप खास करके इसी वजह से रही कि USA और चाइना की जानिब से जो टैरिफ वॉर स्टार्ट हुए उसका इम्पैक्ट तमाम जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उस पर पड़ा है और तमाम मार्केट्स जो है वो कल क्रैश कर गई थी और पाकिस्तान जो स्टॉक मार्केट है उस पर भी उसका असर पड़ा और हमने देखा कि एक वक्त में मार्केट तकरीबन 8,000 पॉइंट्स उसमें कमी देखी गई। लेकिन फिर हमने देखा कि एक अपॉर्चुनिटी बनी और बायर्स ने बाय करना शुरू किया शेयर्स को, जिसकी वजह से मार्केट तकरीबन 4,000 पॉइंट्स रिकवर करने में कामयाब हो गई और आज भी हम उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं कि मार्केट में अच्छी सेलिंग चल रही है। और माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स हैं वो लोकल ही हैं, जिसकी वजह से जो टैरिफ वॉर चल रही है उसका इम्पैक्ट बहुत कम पड़ सकता है मार्केट पे। जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग स्टार्ट कर दी, एक अपॉर्चुनिटी उनको मिली कि तमाम रेट्स कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा बाय हुआ और यही वजह है कि 8,000 पॉइंट्स की जो कमी थी वो तकरीबन 4,000 तक वो ले आए और ये काफ़ी अच्छा रहा मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अभी भी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं मुआशी अहदाफ हासिल करने के लिए, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। हमने देखा कि जो बिजली के टैरिफ उन्होंने कम किए थे उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, ना सिर्फ बल्कि अब आइंदा एक और अंदिया दिया गया है कि आइंदा आने वाले वक्तों में भी बिजली की कीमतें मज़ीद कम होंगी, जिसकी वजह से मुआशी सरगर्मियाँ मज़ीद फ़रोग़ हासिल होंगी उनको और नए मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे, नई फैक्ट्रीज लगेंगी। तो ये काफ़ी अच्छा एक इक़दाम है। उम्मीद यही की जाती है कि अगर इस चीज़ों का तसलसल जारी रहा तो पाकिस्तान मुआशी लिहाज से काफ़ी मुस्तहकम होगा। जी, बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि पोल्ट्री की सनत आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का अहम सतून है। और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एंड एडल्ट्स पॉलिसी पर अहम इजलास हुआ है। राना मशहूद ने इस मौके पर कहा कि नेशनल यूथ पॉलिसी के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी गई है। यूथ पॉलिसी पर मुशावरत के लिए मुल्क भर के दौरे किए जाएंगे। कौमी असम्बली के नौजवान पार्लियामेंटेरियंस भी यूथ पॉलिसी का हिस्सा होंगे। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स इस हवाले से अगले 1.5 माह में काम करेगी। हर तबके की ज़रूरियात को मद्देनजर रखा जाएगा। टिला फील्ड फायरिंग रेंज एहलुम में पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स ने मुश्तरका फायर पावर का अमली मुजाहरा किया, जिसमें स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, आर्मी एविएशन और एयर डिफेंस ने हिस्सा लिया। आला अस्करी हुकाम, PMA कैडेट्स और तलबा ने जंगी हिकमत अमली, दिफाई सलाहियतों, फायर पावर और कम्युनिकेशन नेटवर्क की हम आहंगी का अमली नमूना देखा। ये फायर पावर मुजाहरा PMA कैडेट्स की जंगी मशक़ी तरबियत का हिस्सा था। फायर पावर के अमली मुजाहरे का मुशाहिदा करने के बाद PMA कैडेट्स ने जंगी कार्रवाइयों की खुसूसी तरबियत हासिल की। PMA कैडेट्स ने खारिया में जदीद हथियारों और आलात का मुआयना भी किया। और नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कनाडा के 45वें आम इंतखाबात की, जिसकी मुहिम का बाकायदा आगाज हो चुका है और मुल्क के तमाम 10 सूबों और 3 वफाकी इलाकों में 28 अप्रैल को वोटिंग का अमल मुकम्मल होगा। इसी हवाले से हमने राब्ता किया है PTV के कनाडा के नुमाइंदे नदीम तुफैल से। जी नदीम, क्या गहमा गहमी है यहाँ पर इंतखाबात के हवाले से और कौन सी पार्टी का इस वक्त पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? कनाडा में 28 अप्रैल को होने वाले आम इंतखाबात में दर्जनों पार्टियां हिस्सा ले रही हैं, मगर असल मुकाबला हुक्मरान लिबरल पार्टी और अपोजिशन कंजर्वेटिव पार्टी के दरमियान ही होगा। मशरकी कनाडा, खासतौर पर अटलांटिक सूबों की मैं बात करूं, वहां लिबरल पार्टी को हमेशा ही बढ़तरी हासिल रही है, जबकि क्वेबेक में मुकामी पार्टी मजबूत है जो कि ब्लॉक के नाम से पार्टी है। और कनाडा का सबसे बड़ा सूबा ओंटारियो में सख्त मुकाबला होगा, जो कि ये फैसला करेगा कि इस दफा इक़्तिदार किसके हाथ जाएगा। मगर भी कनाडा में कंजर्वेटिव पार्टी को हमेशा ही बढ़तरी हासिल रही है और इस वक्त में
कैलगरी शहर में मौजूद हूँ, जो कनाडा का चौथा बड़ा शहर है, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी का गढ़ समझा जाता है। यहाँ 6 पाकिस्तानी कैनेडियन मुख्तलिफ जमातों की तरफ से अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, और सबसे बड़ा मुकाबला जो मगरबी कनाडा का मुकाबला कहा जा रहा है वो हल्का स्काईवे में होगा, जहाँ पाकिस्तानी कैनेडियन हफीज मलिक जिनको हुक्मरान लिबरल पार्टी ने टिकट दिया है, उनका मुकाबला एक सिख रहनुमा जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार हैं अमरप्रीत सिंह से होगा। इलेक्शन सर्वे से ये ज़ाहिर हो रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी की बढ़तरी कम होती जा रही है, और लिबरल पार्टी के नए लीडर मार्क कार्नी ने अपनी पार्टी को शिकस्त के भंवर से निकालकर जीत की राह पर डाल दिया है। नदीम तुफैल, PTV न्यूज़, कैलगरी, कनाडा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी मसूआत की दरामद पर मजीद 50% टैरिफ आयद करने की धमकी दी है। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि चीन के साथ तिजारती खसारे का मामला हल होने तक डील नहीं होगी। अगर चीन ने अमेरिका पर आयद 34% टैरिफ वापस ना लिया तो इसे इजाफी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इजाफी 50% टैरिफ आयद होने की सूरत में चीनी मसनूआत की अमेरिका बरामद पर मजमूई टैक्स 104% तक पहुंच जाएगा। अमरीकी सदर का कहना था कि स्टॉक मार्केट्स में जानबूझकर उतार चढ़ाव पैदा नहीं किया, इस्लाहात के लिए इकदाम नागुज़ीर हैं। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने भी अमरीकी दरामदात पर 28 अरब डॉलर मालियत का टैरिफ लगाने का फैसला किया है। सरबराह यूरोपीय कमीशन के मुताबिक टैरिफ लगाने की मंजूरी इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद दी जाएगी। यूरोपीय यूनियन सरबराह का कहना है कि हम अमरीका के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन टैरिफ के मसले पर अपने जवाबी इक़दामात भी किए जाएंगे। सरबराह यूरोपीय कमीशन ने मजीद कहा कि 24 अप्रैल को लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। उधर व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी टैरिफ के बाद 50 से ज़ायद ममालिक के रहनुमाओं ने टैरिफ कम कराने के लिए सदर ट्रंप से राबता किया है। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। गजा पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली बमबारी से मजीद 19 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। गजा सिविल डिफेंस के मुताबिक इसराइल ने रात भर और अलसुब वस्ती और शिमाली गजा पर फ़िज़ाई हमले किए। बैतुल्लाहिया में एक घर पर बमबारी में 6 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। गजा शहर पर भी एक और हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में काबिज़ फ़ौज की छापा मार कार्रवाइयाँ जारी हैं। नाबलूस और तुबास में घर घर तलाशी की कार्रवाई के दौरान 7 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में 3 भाई भी शामिल हैं। अल जजीरा के मुताबिक गजा के नसीर हस्पताल के करीब गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों के खैमों पर बमबारी से ज़ख्मी होने वाला सहाफ़ी अहमद मंसूर भी ज़ख्मों की ताप न लाते हुए चल बसा, जिसके बाद जाँ भाग सहाफ़ियों की तादाद 3 हो गई है। व्हाइट हाउस में इजरायली वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि हम एक और जंग बंदी की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। उन्होंने कहा कि हम इजरायली कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर नेतन्याहू का कहना था कि हम इस वक्त एक और मुआहदे पर काम कर रहे हैं जिसके हवाले से कामयाबी की उम्मीद है। दोनों लीडर्स के दरमियान गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के मंसूबे पर भी बातचीत हुई। फ्रांस, मिस्र और उर्दन ने फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल करने का अमरीका और इसराइल का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। काहिरा में सैफरी की सरबराही इजलास के बाद मुश्तरका बयान में मुतालबा किया गया कि फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें हंगामी इंसानी इमदाद की फौरी और मुकम्मल रसाई को यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर जंग बंदी को यकीनी बनाया जाए। मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी, फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम ने इस बात पर भी जोर दिया है कि शहरियों और इंसानी हमदर्दी के कारकुनों की हिफाजत और इमदाद तक मुकम्मल रसाई को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि आलमी कवानीन के तहत इन इक़दामात पर अमल दरामद होना चाहिए। 6 आलमी इदारों के सरबराहों की जानिब से गजा में फौरी नया जंग बंदी मुतालबा मुआहिदा लाने का मुतालबा किया गया है। और यहाँ पर खबर आपको देंगे भारत से, जहाँ मणिपुर एक बार फिर तबाही के दहाने पर वक्फ मुतनाज़िर बिल पर पूरा भारत एहतजाज की लपेट में आ गया। मुजाहिरीन ने मणिपुर में बीजेपी रहनुमाओं के घर को नजर आतिश कर दिया। हंगामा बीजेपी लीडर की सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा पोस्ट पर हुआ। मुसलमानों की जानिब से बीजेपी रहनुमा का बयान तौहीन आमेज़ करार दिया है। अवाम का कहना है कि मणिपुर पहले ही मोदी की नफरत का शिकार है और अब यह बिल की मंजूरी कबूल नहीं। मणिपुर के इलाके थुबाल में हजारों अफराद ने बीजेपी लीडर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीजेपी लीडर ने एहतजाज के खौफ से मुआफ़ी मांगकर अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। बीजेपी लीडर ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील करते हुए कहा कि वक्त बिल के खात्मे का मुतालबा करता हूं और तज्ज़ियाकारों का भी इस हवाले से कहना है कि बीजेपी की पॉलिसियां मुस्लिम बरादरी में इश्तियाल का बायस बन रही हैं। थोबाल में दफ़ा 163 नाफिज कर दी गई है। मोदी के इस गैर आइनी फैसले पर बैनुल अक़वामी बरादरी को भी आवाज़ उठानी पड़ेगी।
اور اب کچھ قومی خبریں شامل کریں گے۔ حکومت سندھ نے کراچی میں حادثات کی روک تھام کے لیے بڑی گاڑیوں کے لیے رفتار کی حد 30 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کرنے کے ساتھ ٹریفک قوانین پر مؤثر اور ہم آہنگ عمل درآمد ممکن بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کراچی میں ٹریفک سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ شہر میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات میں انسانی جانوں کا ضیاع افسوسناک اور ناقابل برداشت ہے۔ شہر میں حادثات کی روک تھام کے لیے تمام بڑی گاڑیوں، ہلکی ٹرانسپورٹ گاڑیوں اور پبلک سروس گاڑیوں میں ٹریکر اور ڈیش کیم کی تنصیب لازمی ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے فٹنس سرٹیفکیٹ منسوب گاڑیاں ضبط کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ دوبارہ اجازت محکمہ ٹرانسپورٹ سے مشروط ہوگی۔ بھاری اور ہلکی گاڑیوں کے ڈرائیورز کے لیے رینڈم ڈرگ ٹیسٹ لازمی ہوگا۔ مراد علی شاہ نے ڈرائیونگ لائسنس سے قبل بین الاقوامی معیار کی تربیت لازمی قرار دینے کے ساتھ ساتھ غیر قانونی نمبر پلیٹ، کالے شیشے، غیر مجاز سائرن اور لائٹس کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی لانے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل 2 سے زیادہ سواریاں بٹھانے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کا حکم دیا۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹس کو 4 ماہ میں 9 مئی کے ملزمان کے مقدمات کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے انسداد دہشت گردی عدالتوں کو ہر 15 روز کی پیش رفت رپورٹ متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ مشال خان قتل کیس کا 3 ماہ میں ٹرائل مکمل ہوا تھا۔ انسداد دہشت گردی عدالتوں پر اعتماد کیا جائے، وہ بہتر کارکردگی دکھا سکتی ہیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹس کو 4 ماہ میں 9 مئی کے ملزمان کے مقدمات کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے انسداد دہشت گردی عدالتوں کو ہر 15 روز کی پیش رفت رپورٹ متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ مشال خان قتل کیس کا 3 ماہ میں ٹرائل مکمل ہوا تھا۔ انسداد دہشت گردی عدالتوں پر اعتماد کیا جائے، وہ بہتر کارکردگی دکھا سکتی ہیں۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس میں تحریک انصاف نے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر جواب جمع کروانے اور دلائل کے لیے وقت مانگ لیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بیرسٹر گوہر اور درخواست گزار اکبر ایس بابر پیش ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر نے بیرسٹر گوہر سے استفسار کیا کہ کیس 1 سال سے زیر التوا ہے، آج آپ نے دلائل دینے تھے۔ بیرسٹر گوہر نے ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر سنایا، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہائی کورٹ نے سماعت سے منع نہیں کیا، آپ ہر صورت اگلی پیشی پر دلائل دیں۔ ماری انرجیز لمیٹڈ نے وزیرستان بلاک میں واقع سپن وارم 1 کنویں سے چوتھا گیس اور تیل کا ذخیرہ دریافت کر لیا ہے۔ یہ دریافت سپن وارم ایک کنویں کی لوک ہارٹ فارمیشن میں ہوئی ہے۔ یہ دریافت 25 فروری، 17 مارچ اور 3 اپریل 2025 کو اسی کنویں میں سماناسک، کاواگڑھ اور ہنگو فارمیشن میں ہائیڈرو کاربن کی دریافتوں کا تسلسل ہے۔ ماری انرجیز کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او فہیم حیدر نے نئے ہائیڈرو کاربن ذخائر کی تلاش اور ترقی کے لیے کمپنی کی جانب سے مسلسل کوشش کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے وزیر پیٹرولیم، ڈی جی پی سی، صوبائی حکومت، قانون نافذ کرنے والے اداروں، مقامی کمیونٹیز اور مشترکہ منصوبے کے شراکت داروں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر نے ماری انرجی اسکیم کی جانب سے اس اہم سنگ میل کو حاصل کرنے کے لیے لگن اور کوششوں کو سراہا ہے۔ انہوں نے وزیرستان جوائنٹ وینچر کی کامیابی کو یقینی بنانے میں وفاقی اور صوبائی حکومتی شراکت داروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ایف سی بلوچستان ساؤتھ کی جانب سے مارچ 2025 میں بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا گیا۔ ایف سی بلوچستان کی جانب سے مارچ میں دور افتادہ علاقوں میں 279 فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا گیا۔ ان علاقوں میں تربت، من، بلیدہ، حشاب، دشت، پنجگور، خاران، دالبدین، تفتان اور ماشکیل کے دور دراز علاقے شامل ہیں۔ میڈیکل کیمپس میں بچوں اور خواتین سمیت 11,735 مریضوں کو مفت علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی ہیں۔ کیمپس میں مختلف طبی معائنے اور لیبارٹری ٹیسٹ کی سہولیات کے ساتھ ساتھ مفت ادویات بھی تقسیم کی گئیں۔ اور ایف سی بلوچستان ساؤتھ کی جانب سے مارچ 2025 میں بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا گیا۔ اسی حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا، مزید خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان ہیریٹیج اینڈ ریزولیوشن کے دن کے موقع پر نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کی پاکستانی امریکن لا انفورسمنٹ سوسائٹی کی زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں قانون کے نفاذ میں امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے کردار کو اجاگر کیا گیا۔
तकरीब से खिताब में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल आमिर अहमद अतुज़ई ने न्यूयॉर्क के मुतनव्वे इलाकों में अमन और सलामती को मजबूत बनाने में पाकिस्तानी अमरीकी अफसरान के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का तारीखी सकाफती वर्सा और कुदरती हुस्न दुनिया भर के सयाहों के लिए गहरी दिलचस्पी का बायस है। सयाहत से न सिर्फ मईशत को तक़वियत मिलेगी बल्कि मुख्तलिफ सकाफतों के दरमियान हम आहंगी और ताउन को भी फ़रोग़ मिलेगा। अमरीकी शहर ओक्लाहोमा में पाकिस्तानी सकाफत और मौसीकी के रंगों समेत मालूमाती सेशन से सजाया पाकिस्तानी अमेरिकी डॉक्टर्स का 4 रोज़ा कन्वेंशन इख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद, गवर्नर ओक्लाहोमा, अमरीकी मुंतखब नुमाइंदों और 600 से ज़ायद पाकिस्तानी अमरीकी डॉक्टर्स ने शिरकत की। कन्वेंशन के मौके पर गुफ्तगू करते हुए अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद का कहना था कि अपना का प्लेटफॉर्म पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने और पाकिस्तान का रोशन चेहरा नुमायां करने का एक अहम जरिया है। अपना के सदर डॉक्टर उमैर अकबर, डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह, डॉक्टर नईम ताहिर खैली और दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि हमारी तंजीम की बदौलत इस साल रिकॉर्ड तादाद में नौजवान पाकिस्तानी डॉक्टर्स अमरीका आए हैं। पाकिस्तान दूसरा बड़ा मुल्क है जिसके सबसे ज्यादा नौजवान डॉक्टर्स अमरीकी अस्पतालों में रेजिडेंसी के लिए मौजूद करार पाए हैं। नाज़रीन, कराची में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात का आगाज़ हो गया है। इस साल नहम और दहम जमात के लिए बोर्ड की तरफ से तमाम तलबा तालिबात को कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से सुहेल जमाली। जी सुहेल जमाली, किस तरह से इंतजाम देख रहे हैं अब की बार यहाँ पर एग्जाम्स के? कराची में मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज़ हो गया है और आज सुबह 9:30 से 12:30 तक कंप्यूटर साइंस का 10वीं जमात का पर्चा हुआ। पूरे शहर में 499 इम्तहानी मराकिज़ बनाए गए हैं, जिसमें से 256 लड़कों के और 243 लड़कियों के हैं। इम्तहानात में 3,75,000 तलबा और तालिबात हिस्सा ले रहे हैं। इस हवाले से बोर्ड के चेयरमैन गुलाम हुसैन सोहो ने बताया है कि इम्तहानात के लिए तसल्ली बख्श इंतजामात किए गए हैं और किसी सेंटर से किसी किस्म की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है अब तक। इसके अलावा बोर्ड ऑफिस में रिपोर्टिंग सेल कायम किया गया है, जहां किसी भी किस्म की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। कराची के तमाम अजला में 19 हब मराकिज़ कायम किए गए हैं, जहां से इम्तहानी पर्चों की तरसील तसल्ली बख्श अंदाज में सुबह में की गई है। मैट्रिक बोर्ड की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों को ख़त लिखा गया है कि इम्तहानी मराकिज़ के आसपास फोटोस्टेट की मशीनें और नकल की रोकथाम के लिए तसल्ली बख्श इंतजाम किए जाएँ और दफ़ा 144 का निफाज किया जाए। कराची के तमाम अजला में विजिलेंस ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं, जो इम्तहानी पर्चों की तरसील पर मामूर हैं और इम्तहानी कापियों को बोर्ड ऑफिस तक पहुँचाने के ज़िम्मेदार हैं। इस दौरान कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन ने इस बात का खुसूसी एहतमाम किया था कि तमाम इम्तहानी मराकिज़ में लोड शेडिंग ना की जाए। ताहाल इस हवाले से भी कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। जी, बहुत शुक्रिया सुहेल जमाली। वज़ीर आज़म की जानिब से बिजली के घरेलू और सनती निर्खों में कमी को खानेवाल के मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के अफराद ने सराहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं कुलज़म बशीर अहमद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से घरेलू और सनती बिजली की कीमतों में कमी का खानेवाल के हर शोबाए ज़िंदगी के अफराद ने न सिर्फ खैर मकदम किया है, बल्कि खुशी का इजहार करते हुए इसे एक तारीखी फैसला करार दिया है। इन हलकों का यही कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अवाम के दिल जीत लिए हैं और इन्होंने मुतालबा किया है कि बिजली समेत दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी की जाए। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਇਕਦਾਮ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਹੈ, जो बिजली के रेट कम किए हैं, जिससे मुल्क की जो मैशियत है उसका पहिया चलेगा। बिजली के बिलों में जो नुमाया कमी हुई है, ये हुकूमत का बहुत अच्छा इकदाम है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान की मुआशी बल्कि कारोबारी सनत को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बिजली के बिलों में नुमाया कमी की है और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी चीजों में भी वो नुमाया कमी करें ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। बिजली की कीमतों से जहां आम आदमी पर बिजली के भारी बिलों का बोझ कम होगा, वहीं मुल्की माशी तरक्की में भी तेजी आएगी। कुलज़म बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खानेवाल। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का देही ख़वातीन के लिए तारीख साज मनसूबा लाइव स्टॉक की फ्राहमी। ज़िला विहाड़ी की 403 बेवा और तलाक याफ्ता ख़वातीन में जानवर तकसीम किए गए। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं बहादुर हुसैन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के देही ख़वातीन के लिए लाइव स्टॉक प्रोग्राम के तहत जानवरों की तकसीम का अमल जारी है। इस प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में ज़िला विहाड़ी की 403 बेवा और तलाक याफ्ता ख़वातीन में जानवर तकसीम किए गए। महकमा लाइव स्टॉक विहाड़ी के ज़ेर एहतमाम ज़िला भर की 403 बेवा और तलाक याफ्ता ख़वातीन में जानवर तकसीम करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुंतखब सियासी नुमाइंदों ने ख़वातीन में जानवर तकसीम किए।
इस प्रोग्राम के तहत जानवरों की देखभाल के लिए खवातीन को 5,000 रुपए भी दिए जा रहे हैं। मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करती हैं कि जिसने गाँव दी और बहुत बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज का बहुत बहुत शुक्रगुजार, ये साडे गरीबां वास्ते उन्हें साडी मदद की थी। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने हमारी हेल्प की है। मेरे यतीम बच्चे हैं और मैं बेवा हूँ, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा, हमारी मदद की। जनूबी पंजाब के 12 अजला की खवातीन को ये जानवर 2 मरहलों में दिए जा रहे हैं, जिससे एक तरफ मुस्तहिक खवातीन की माली मदद होगी, जबकि दूसरी जानिब गोश्त और दूध की पैदावार में भी इजाफा होगा। बेवा और मुतलका खवातीन में लाइफ स्टॉक असासजात की तकसीम का प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब का खवातीन की खुद मुख्तारी का मनसूबा है, जिसका मकसद नदार खवातीन को रोज़गार के काबिल बनाकर बाइख्तियार बनाना है। बहादुर हुसैन, PTV न्यूज़, विहाड़ी। गुलकार असद अमानत अली खान को अपने मदाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए हैं। उनकी गाई हुई गज़लें और गीत आज भी मदाहों के कानों में रस खोलते हैं। असद अमानत अली की फ़नी खिदमात के बारे में जानते हैं लाहौर से शुमाइला शब्बीर की इस रिपोर्ट में। असद अमानत अली खान पटियाला घराने का एक रोशन सितारा थे। उन्होंने अपने फन के जरिए मौसीकी की दुनिया में ये साबित किया कि लय और ताल की खूबसूरती अल्फाज की मोहताज नहीं। असद अमानत अली खान को फन तो विरसे में मिला ही, लेकिन शनाख्त उन्होंने अपनी सलाहियतों से मनवाई। असद अमानत अली 25 सितंबर 1955 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने मौसीकी की इब्तदाई तालीम अपने वालिद अमानत अली खान से हासिल की। मारूफ गुलकार को असल शोहरत उमरा लंगियां पब्बा पार से मिली। उन्होंने मुख्तलिफ फिल्मों के लिए भी गीत गाए। आँखें गजल है आपकी और होंठ है गुलाब, सारे जहां में आपका कोई नहीं जवाब। मौसीकी का ये सुनहरी बाब 8 अप्रैल 2007 को बाहों को अफसरदा छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिला। असद अमानत अली खान आज हम में मौजूद नहीं, लेकिन अपने सुनने वालों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ख़ाजा ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में सेहत के शोबे में IT के फ़रोग़ और बाहिमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी और सेहत के बुनियादी ढांचे की महदूद दस्तियाबी के पेश नज़र टेली मेडिसिन एक नागुज़ीर हल है। डॉक्टर्स और दवा आवाम की दहलीज तक लाएंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए 1 पेशेंट 1 ID का निज़ाम मुतारिफ करवा रहे हैं। शिज़ा फातिमा ख़ाजा ने कहा कि वज़ारत IT सेहत के शोबे में IT के इस्तेमाल के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से DG FIA रफ़त मुख्तार राजा और डायरेक्टर जनरल नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वकारुद्दीन सैयद ने मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने DG FIA को गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ मौसर हिकमत अमली तैयार करने का टास्क देते हुए साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए DG NCCIA को हिदायत दी। वज़ीर दाखिला ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस माफिया के खिलाफ मुल्क भर में मौसर क्रैकडाउन का हुक्म भी दिया और कहा कि इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए चारों सूबों में बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाए। मोहसिन नकवी ने कहा कि FIA समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुल्क से गैर कानूनी स्पेक्ट्रम और मुनज़्ज़म जराइम के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। NCCIA की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाएगी और अफसरों को तरबियत के लिए बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा। नाज़रीन, PDMA की जानिब से जारी किए गए अलर्ट के मुताबिक पंजाब के बड़े शहरों और मैदानी इलाकों खुसूसन जनूबी पंजाब के अजला में गर्मी की शदीद लहर आने का खतरा है। DG PDMA ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के पेश नज़र हीट वेव से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसके लिए मुतालिका इदारों को गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। PDMA की जानिब से जारी किए गए अलर्ट के मुताबिक रवा माह पंजाब में दर्जा हरारत 4 से 7 डिग्री मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। PDMA की जानिब से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए शहरियों को हीट वेव के खतरात से आगाह करने की अपील भी की गई है। मुतालिका इदारों से कहा गया है कि किसानों को हीट वेव के फसलों पर असरात से मुतालिक आगाही दी जाए। PDMA ने वेटनरी केयर सेंटर्स को 24 घंटे फ़ाल करने की हिदायत जारी की हैं।
محکمہ صحت کو ہدایت کی گئی ہے کہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز قائم کیے جائیں اور ممکنہ مریضوں کو ابتدائی طبی امداد کی فراہمی اور ادویات کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ محکمہ صحت کو عوامی مقامات پر موبائل ہیلتھ یونٹس اور میڈیکل کیمپس لگانے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ ناظرین، آئندہ 12 گھنٹے کے دوران پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہیٹ ویو آنے کا خطرہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں آج سے 11 اپریل تک وقفے سے گرد آلود ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وسطی اور جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ اس موسمی نظام کے زیر اثر چترال، دیر، سوات، شانگلہ، کوہستان، مانسیرہ، ایبٹ آباد، بٹگرام، بونیر، کورم، باجوڑ، محمد اور اکزئی، مری، کلیات، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں وقفے سے تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال سمیت خطہ پوٹھوار اور شمال مشرقی پنجاب میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر یالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ اس دوران پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں بھی چلیں گی۔ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے وسطی اور جنوبی علاقوں میں بچوں، خواتین اور بزرگ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ کاشتکار حضرات اپنی فصلوں کے معاملات موسمی حالات کے مطابق ترتیب دیں اور اپنے جانوروں کو گرم موسم سے محفوظ رکھیں۔